All right. Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. कैसा गया weekend? Good afternoon, sir. Good afternoon. बढ़िया रहा weekend? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. homework was there. ठीक है. मैंने कुछ homework दिया था आप लोगों को periodic properties से अभी? No, sir. DPS कह रहा खाली बस. DPP. Sir, only explanation was there. Yes, sir. DPT दिया था. ठीक है. Actually हम लोगों ने अभी तक periodic properties start नहीं करी है ना. अब हम properties start करेंगे तो फिर अब आपको और questions मिलने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. So last 3 classes में हम लोगों ने periodic table के बारे में समझा था. That what exactly is a periodic table and how its structure is, what are the elements that are present in what locations. After understanding that, अब हम लोग properties का discussion करेंगे. And as a background, मैंने आपको last class में एक important factor which affects all the properties associated with atoms, that is Z effective nuclear charge, वो आपके साथ share किया था. ठीक है. Now, apart from this, आगे अब हमारे सामने periodic properties रहने वाली. Like we are going to cover 5 properties एक एक करके. Atomic size रहेगा, ionization energy, electron gain enthalpy, hydration energy and electronegativity. Right? So ये हमारी important properties हैं जो हम एक एक करके discuss करेंगे. Now, as I understand that आप लोगों का इस coming Sunday को periodic properties chapter का test है. Now, उस test के पहले definitely आपका chapter complete तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. So, it might happen that you have a different test paper as compared to the other batches जिनका periodic properties chapter खत्म हो चुका है. ठीक है. So, it is something which is most likely scenario that is going to happen depending upon अपना syllabus. इस week में let me just quickly check हमारे पास कितने lectures हैं इस week के अंदर. Counting today we have lectures. Sir, Saturday तक रोज है. Sir, Saturday तक है. Sir, कल है. Sir, 4 फिर days. परसों है. 5 दिन. फिर and then Friday But one and class then is doubt Saturday. ठीक है. So Saturday को I will predominantly keep Saturday for doubt discussion only. ठीक है. So Saturday को we will discuss doubts from the homework that I will be giving you of periodic properties. तो आप मान के चलो कि 3 लेक्चर हैं जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे. In the sense it will be on as in today, tomorrow and Friday. ठीक है. Thursday वाला भी मेरे को पता पड़ा है that Thursday को भी आपका कोई doubt class है. But honestly, that was not something which I am like completely aware about, that what exactly is that doubt class and what exactly is going to happen in that doubt class. So I'll keep it as a doubt for myself that I don't really know what that doubt class is going to be. Sir, but it is taken by some other sir. Then how can we? So, BCH sir. Exactly. So I also can't understand that वो जो doubt class है उसका objective क्या रहेगा, कैसा रहेगा. ठीक है. अभी के लिए Sir, I am could it be a typing mistake? right now keeping Saturday, ठीक है, for our doubt discussions. In case आपके Thursday को doubts वगैरह हो जाते हैं, you are able to clear them out, तो it's okay. Then Saturday को हम लोग थोड़ा सा और चैप्टर आगे पढ़ लेंगे. ठीक है. तो आपके लिए फॉर अ सेक ऑफ क्लैरिटी फ्राइडे की क्लास तक मैं जितना पढ़ाऊंगा इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज गोइंग टू बी योर सिलेबस फॉर द अपकमिंग संडे का टेस्ट. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Sir, what about that form?
Yes, sir. हाँ, अच्छा, रहा सवाल वो गूगल फॉर्म का, I'll spend some time on it towards the later part of the class, not right now. Let me first complete the target of periodic property that I wanted to discuss. After that फिर मैं आपको फॉर्म के बारे में बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? It will hardly take 5 minutes or so. It will not take much of your time. हाँ. Sir, I have one doubt. Sir, इसमें sir, while reading NCERT, sir, this you have to read that number 1, sir, Kelvin. Sir, I'm telling you. Sir, this one. Sir, metals are usually solids at room temperature. Mercury is an exception. Gallium and cesium also have very low melting points, 303 Kelvin and 302 Kelvin respectively. We have to memorize that 303 and 302. नहीं, don't need to memorize numbers a lot. Okay, sir. बट हाँ, ये अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दैट गैलियम और सीजियम के लिए दैट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये आप ध्यान में रखना जरूरी, ठीक है? अच्छा, नाउ लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं इसको. I also had it out. अभी वेट कर लो. नाउ when we talk about this atomic size or atomic radius of an atom, तो हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा पर रिलाय करेंगे as compared to a theoretical measurement of finding the electron, right? So you might come up with these two approaches when I ask you about size of atom. तो आपके दिमाग में दो तरीके हो सकते हैं साइज ऑफ एटम को कंप्यूट करने का. एक हो सकता है थियोरेटिकल तरीका. थियोरेटिकल तरीका क्या हो गया? दिस विल बी बेस्ड अपॉन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें what you might come up and say is that ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड like electrons are likely to be found in certain regions, certain orbitals. तो उन orbitals के साइज के हिसाब से हम लोग comment कर सकते हैं on the size of atom. This is not a correct way. This is not a correct method because the entire premise of quantum mechanical model is based upon the idea of probability. ठीक है? So in fact, as a example, ठीक है, आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर? Yes, sir. अच्छा, अभी हाइड्रोजन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s में लाया करता है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका. Yes, sir. आपने उसके ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया है कुछ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Spherical shape, ऐसे. हाँ, डू यू नो कितने डिस्टेंस पर ये ऑर्बिटल की बाउंड्री होती है? Sir, we should take the Sir, board. 0.529 into R. 0.529 into R square divided by Z square. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, दिस इज नॉट एट द वैल्यू जो आप लोग बोल रहे हो, ठीक है? फॉर हाइड्रोजन एटम दिस इज समवेयर अराउंड 2.6 या 2.7 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये जो हमने स्फीयर की बाउंड्री बनाई है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा होगी. ठीक है, वेयर एज द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, ठीक है, ये आपने वो जो ग्राफ्स देखे होंगे साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर वाले, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया लगता है, तो उसमें जो मैक्सिमा है, जो लोकेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की मैक्सिमम चांस इज समवेयर हियर इनसाइड, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, राइट? बट ये जो बाउंड्री है वो ड्रॉ करी जाती है इस तरीके से ताकि वी कवर 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है,
Now this is something which is how the quantum mechanical model works. So यहाँ पर as you can see that location where the probability is maximum and the boundary surface जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की probability, cumulative probability 90% से ज़्यादा है, they don't really have a very close relationship. तो हम लोग ये जो theoretical approach है of calculating size of atom इसको नहीं use करेंगे. Rather, what we will be doing is, in order to compute the size of atom, we will be relying on experimental techniques. Now, these experimental techniques are going to be a little bit of approximations. They are going to be not something which we can accurately say because हमको electron दिखता नहीं है. We can never like experimentally tell that this is where the size of the atom should strictly end. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. तो हम लोग इसमें experimental observations जो आएंगी size of atom की उन्हीं को account में लेंगे और उन्हीं के हिसाब से हम लोग फिर different elements के size को compare करेंगे. किसी का size कम होगा, किसी का size ज़्यादा होगा. तो all of that is going to be based upon the experimental techniques of measuring size. ठीक है. अब वो experimental techniques क्या होंगी, कैसे होंगी, वो मैं आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करता हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर अपन पहला पैराग्राफ रीड करेंगे. ये पैराग्राफ रीड करना. How it goes is that while measuring the atomic size of elements, we use certain approximated ways and experimental techniques. The actual size of an atom is not accurately determined. Okay, because as simple as Heisenberg's uncertainty principle prohibits it. Now, given this background कि हम लोग experimental techniques use कर रहे हैं to measure the size of atoms, आप notice करोगे that depending upon the type of element and the method that is used to calculate the size, we have the following types of radius or atomic radii that are defined. सबसे पहला रहेगा covalent radius. Now, what does it mean? तो इसमें context समझना पहले. That covalent radius is primarily used for non-metals. ठीक है. It also can be used for metals, but primarily used for non-metals when they form covalent compounds. Now, how it helps us or how it is calculated, यहाँ पे notice करना. तो let's say अगर मुझे hydrogen atom, ठीक है, example notice करना, मुझे अगर hydrogen atom का size निकालना है, तो what I will do is I will look out for the elemental form of hydrogen. ठीक है. ये क्या हो गया आपके लिए? H2 क्या हो गया? This is the elemental form of hydrogen element. Right, an uncombined form with other species. Hydrogen combine होकर ये H2 molecule बनाता है. तो अब हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे. ठीक है. लेट्स से विजुअलाइज कराने की मैं आपको कोशिश करता हूँ दैट ये आपके पास में एक वेसल है और इस वेसल के अंदर यू हैव H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अंडर सर्टेन कंडीशंस आपने इस वेसल के अंदर H2 मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं. ठीक है. अब देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जिनसे वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं देख पाते. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट समथिंग विच वी कैन लोकेट एक्यूरेटली, बट जो न्यूक्लियस हैं उनकी पोजीशंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. तो अब जैसे ये मेरा वेसल है, इसके अंदर व्हेन आई एम एनालाइजिंग these atoms or these molecules, तो उसमें what I find is that there are these ऐसे nuclei present at certain distance from each other. ठीक है. तो अब मैं इसमें क्या करूँगा? ठीक है. what I will end up doing is मैं इनमें से like एक statistically large sample लूँगा. ठीक है. and notice करूँगा
कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है. ठीक है, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियाई और टू क्लोजली स्पेस्ड न्यूक्लियाई. उस डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूंगा, इस डिस्टेंस को मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करूंगा, एंड देन आई विल रिपोर्ट half of the distance, divide that distance by 2, I will report that as the covalent radius of hydrogen atom. Now as you know, आपको जैसे पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम्स के बीच में, तो लाइक एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ओवरलैप करते हैं. तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर इज दिस एन अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है ना यहाँ पर, एक्चुअल साइज में भी शायद इससे थोड़ा बड़ा हो. तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम सही है, दैट इट इज अ बिट ऑफ एन अंडर एस्टिमेशन. ठीक है, बट दैट इज द वे in which we have decided to measure the covalent radius. That is the way in which this radius is to be calculated and tabulated in the chemistry literature. Now, having said that, अब आप notice करोगे कि ये जो values होंगी different elements की, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रेडियस ऑफ कार्बन क्या है, रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या है, राइट, डिफरेंट एलिमेंट्स का आप ये डेटा देखना चाहोगे, तो ध्यान से सुनना. नाउ इन वेरियस टेक्स्ट बुक्स, इन वेरियस सोर्सेज, द डेटा माइट डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसे एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, ठीक है, एंड फिर आपने साथ में से जेडी ली भी रेफर किया, और आपने से वीके जायसवाल भी रेफर किया. ठीक है, वीके जायसवाल में तो खैर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, थ्योरी है ही नहीं. बट अगर कोई और आपने बुक रेफर किया, सम गुड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है, नॉट जनरली गूगल पे कुछ भी देख लिया, सम डिसेंट टेक्स्ट बुक यू रेफर्ड, तो ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी स्लाइट वेरिएशन इन द डेटा. ठीक है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में लिखा हो ये 1 है, 1 एंगस्ट्रॉम है, जेडीली में लिखा हो कि ये 1.02 एंगस्ट्रॉम है, और किसी और बुक में लिखा हो कि ये 0.98 एंगस्ट्रॉम है. स्लाइट वेरिएशन इन डेटा भी आपको मिलेगा. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपसे कोई डेटा नहीं पूछने वाला है कि मुझे बताओ कि किस एटम का कितना साइज होता है, वैल्यू बताओ, ऐसा आपसे कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे जो समझा जाएगा, इज दैट ट्रेंड कैसा है, किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है, ये रिलेटिव ट्रेंड बिटवीन एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के आयंस, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नॉट द एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर. हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो. Sir, सर अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम रहता है इसका वैल्यू? नहीं, मैंने रैंडम वैल्यू लिया है. सर तो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा फिर? मुझे याद नहीं है. Sir, Okay, has sir. anybody seen atom through microscope? They have of course tried to understand कि एटम क्या दिखता है, कैसा दिखता है, बट न्यूक्लियस की पोजीशन फिर भी एक्यूरेटली डिटरमाइन होती है. इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आर बेस्ड अपॉन a lot of probability and hence a bit inaccurate. Okay, sir. And sir, means when two atoms have a bond, so sir, like while bonding, they do not repel, means the outer electron. देखो, जब दो एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों एग्जिस्ट करता है. हाउएवर अभी के लिए मैं आपको बॉन्डिंग नहीं समझा रहा हूँ. वी आर नॉट स्टडिंग द चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग राइट नाउ. अभी के लिए यू कैन be comfortable with this understanding that yes, there is something called bonding that happens between atoms. Sir. Okay, sir. हाँ. Sir, the overlap is same for all the
No. elements, like O2, that overlap is same for like hydrogen atoms, No. H2, sir. No. Oh, okay, sir. Then that is an exception, right? We can't compare actually. यहाँ पे ये पढ़ा? Yes, sir. Got it. Approximate. Okay, so we are using certain approximated ways while doing these measurements, and that is why I said that when you look at standard data also, ठीक है, जो भी ऐसे respectable sources होते हैं जिनसे हम लोग जनरली डेटा रेफर करते हैं फॉर यूजेज, उनमें भी स्लाइट वेरिएशन रहता है, which is absolutely okay, which is absolutely fine, because that uncertainty or that approximation is the part of measurements, the way in which these techniques are. Okay? And that does not bother us because we don't really seek आंसर्स लाइक कि इसका एग्जैक्ट साइज कितना है, इसका एग्जैक्ट साइज कितना है, नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना करे जाएंगे. आपको ट्रेंड्स के बारे में बताना होगा, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज कम है. दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन. Sir, but in the trends actually, if the overlap is not same, then it will be an approximate trend, no sir? नहीं. So it is something which is going to be a way in which measurement is going to be done for all the atoms. Okay, sir. ठीक है. Now, coming back, ये तो एक टाइप का, अभी रुक जाओ, ये एक टाइप का रेडियस है, that is called as covalent radius. ठीक है. This is primarily used in case of non-metals because non-metals generally covalent compounds बनाते हैं, covalent bonds बनाते हैं, right? Sometimes metals के लिए भी यूज हो जाता है, but those are certain cases और compounds. ठीक है, थोड़े फैंसी से नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, like coordination compound या organometallic compound. ये ऐसे compounds है जिनमें metals भी covalent bond बनाते हैं. ठीक है, so these are something which you will refer later. आपके सामने आएगा, not in this chapter, not right now, but जब बाद में आप मान के चलो ऑलमोस्ट 1 साल बाद में इन सब चीजों का डिस्कशन होगा. अच्छा, देन डिपेंडिंग अपॉन, एज आई सेड, एलिमेंट्स, देयर इज अनदर रेडियस दैट इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस. नाउ जनरली ये मेटल्स के लिए यूज होता है, एंड what happens is that metals का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आता है आप लोगों को? आप लोगों ने Yes, sir. like junior classes में पढ़ा होगा. Yes, solids yes, have crystalline as well as amorphous structures. Yes, sir. Yes, sir. We have amorphous. डायमंड जैसा ना. हाँ, so यहाँ पर कैसा होता है, जो मेटल्स होते हैं, Sir, sugar जैसे ना? जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एक मेटल हो गया, राइट? तो आयरन का जो मेटल होता है उसमें आयरन के एटम्स आर इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, देयर इज सम पैटर्न व्हिच इज फॉलोड थ्रू आउट दैट सॉलिड. नाउ इन दिस केस व्हेन दैट स्ट्रक्चर इज स्टडीड, तो उसमें वो क्या करते हैं, अगेन जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, ठीक है, जो दो एटम्स नियरेस्ट होंगे एक दूसरे के, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, and then again divided by 2 to report the metallic radius of the atom or the element. तो जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा गंदा सा ड्राइंग बना हुआ है जिसमें there is some arrangement of atoms. ठीक है, थोड़ा अच्छा ड्राइंग होता तो और बेटर रहता, बट इसमें as I said जो closest atoms होते हैं, nearest neighbors जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, राइट? And then that distance is divided by 2 and that radius is reported as metallic radius. ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखी हुई है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? The crystalline structures of metals are studied in their closed packed form. ठीक है, now ये जो closed packed form होता है, ये भी एक टर्म है जो कि आपको आगे ही समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल this can be one arrangement of atoms. ठीक है, ये एक arrangement हो गया. There can be another arrangement, say something in this manner.
ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट. इसमें कैसा होता है, सेंटर के नीचे सेंटर आ रहा होता है, राइट. इसमें कैसा होता है, सेंटर के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसके नीचे अगली रो का सेंटर आ रहा होता है. तो देयर आर डिफरेंट पैकिंग्स दैट आर देयर इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स. तो उसमें से जो क्लोज्ड पैकिंग होती है, मतलब जो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो वाला पैकिंग यूज करना होता है. ठीक है. तो अभी के लिए आपको ये वर्ड नहीं समझ में आएगा इतना क्लियरली कि सर व्हाट इज क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म. दैट इज ओके. हाउएवर आई विल स्टिल आस्क यू टू कीप इट इन योर नोट्स. ठीक है. इसको लिखना भूलना नहीं. एंड बाद में जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड भी समझ में आएगा. ठीक है. तो दिस वाज मेटालिक रेडियस. हाँ, इसमें आप कुछ डाउट है बताओ. सर इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना. या सो इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रहता है, किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, उस सब का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ. अभी मैंने क्या बताया इसमें, दैट अरेंजमेंट है, एटम्स आपस में अरेंज्ड हैं. इलेक्ट्रॉन्स को तो हम देख सकते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियस की पोजीशन के बेसिस पर एक साइज का एस्टिमेशन लेते हैं. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब होता है एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. सर. ठीक है. हाँ. So because it's regular, the distance will be same everywhere, right? Yes. सर बट ये अलग अलग टाइप के रेडियस का रियल लाइफ में क्या काम होता है? अभी धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा. Sir, is it compulsory that all the atoms of a particular element have same size? So we take a statistically large sample, ठीक है, and based upon that sample we come up with a statistically important terms. आपने पढ़ा होगा ना mean, median, mode. Yes, sir. Right? तो वैसे ही एक statistically large sample लिया जाता है और उसके हिसाब से फिर उस डेटा को स्टडी करके standard deviation को यूज करते हुए we come up with a answer that this should be the size of the atom. Okay, sir. Now, अब एक और तरीका रहता है, एक और टाइप का रेडियस या साइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियस. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट वैन डर वाल्स रेडियस, एक क्विक नोट है दैट अगर हम किसी कंपाउंड के लिए या सॉरी किसी एलिमेंट के लिए मेटालिक एज वेल एज कोवेलेंट रेडियस दोनों रिपोर्ट कर पाते हैं, तो फिर व्हाट वी टिपिकली फाइंड is that metallic radius is greater than the covalent radius. That is like an observation. If we have an element जिसके लिए दोनों टाइप का डेटा मिलता हो. ठीक है. Now थर्ड टाइप का रेडियस यहाँ पे नोटिस करना, that is called as van der Waals radius. Now this van der Waals radius is something which is very less used. ठीक है. ऊपर वाले जो दो रेडियस हैं, दोज आर द वंस व्हिच आर प्राइमरीली यूज्ड. उसमें भी कोवेलेंट वाला सबसे ज्यादा यूज होता है. अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप ये मान के बैठो कोवेलेंट रेडियस का ही डिस्कशन हो रहा होगा. ठीक है. बट समटाइम्स ये थर्ड वाला जो रेडियस है, वैन डर वाल्स रेडियस, ये भी यूज हो जाता है. अब ये यूज होता है स्पेशली फॉर नोबल गैसेस, बिकॉज नोबल गैसेस जो हैं दे डोंट फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर elements or with like their own type of atoms, right? helium के बीच में bond form नहीं होता, neon के बीच में bond form नहीं होता. तो what happens is that अगर मैं let's say helium का एक sample भी ले रहा हूँ तो उसमें मुझे मतलब बस क्या मिलेगा, ऐसे न्यूक्लियस दिखेंगे different distances पे from each other, but अब सिर्फ एक न्यूक्लियस के बेसिस पर कमेंट करना कि साइज ऑफ एटम क्या होगा विल बिकम अ चैलेंज, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी ट्राई टू सॉलिडिफाई दिस नोबल गैस. ठीक है. हम लोग काफी लो टेम्परेचर्स पे लेके जाना पड़ता है. ठीक है. व्हेन वी डू दैट देन दीज गैसेस
दे डोंट रिमेन गैसेस एज सच, वो सॉलिड बन जाते हैं और उनके एटम्स का वापस से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो जाता है उनके एटम्स का, एक रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे बाद में, दीज आर कॉल्ड एज मोलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, काफी लो टेम्परेचर्स पे ये चीज अचीव हो पाती है। नाउ इन सच सिचुएशंस, ठीक है, वी अगेन ट्राई टू देन कम अप विद द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, and then divide that by 2 to report that as the van der Waal radius. Now ये जो radius होता है, this is actually quite large as compared to these other radius that we measured. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो force इन दोनों atoms को साथ में रखे हुए है, ठीक है, जो van der Waals फोर्स है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा van der Waals फोर्स। ये जो फोर्स इन एटम्स को साथ में रखे हुए है, ये फोर्स काफी वीक होता है, इट इज वेरी वीक फोर्स। तो बिकॉज ऑफ वीक फोर्स तो ये एटम्स क्या ज्यादा पास पास भी नहीं आ पाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा वैल्यू रहता है। ठीक है, तो जो नोबल गैसेस हैं उनका रेडियस या उनका साइज अगर आप नोटिस करोगे तो वो लाइक ज्यादा ही मेजर हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस मेजर ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रिपोर्ट ये van der Waal रेडियस करा जाता है। ठीक है, समटाइम्स ये van der Waals रेडियस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का भी van der Waal रेडियस मेजर करा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का van der Waal रेडियस कैसे मेजर करा जाता है? तो उसमें वही करते हैं, H2 गैस को सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर जैसे हमने एक सैंपल लिया, उसमें H2 गैस को सॉलिडिफाई कर दिया, राइट। तो H2 गैस के दो मॉलिक्यूल्स तो कैसे दिखते हैं, लाइक दे आर दो न्यूक्लियाई तो बहुत पास पास रहेंगे, बट अब क्या करेंगे कि जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, राइट, तो इनके जो पास एक दूसरे के न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट, एंड देन रिपोर्ट और डिवाइड दैट डिस्टेंस बाय 2 टू रिपोर्ट द van der Waals रेडियस ऑफ दैट नॉन मेटल। ठीक है, सो टिपिकली van der Waals रेडियस इज यूज ही नहीं करा जाता है। ठीक है, van der Waals रेडियस जनरली इज नॉट यूज्ड इन कंपैरिजंस इन डिस्कशंस। ठीक है, द only reason why van der Waals radius is something useful or something that comes handy is when we want to take an estimate of size of noble gases. ठीक है, because उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस नहीं रिपोर्ट कर सकते, वो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, बट इवन आफ्टर डूइंग दैट, इवन आफ्टर कंप्यूटिंग द van der Waals radius of these noble gases, what we come to a conclusion is that the size reported because of van der Waals radius is much overestimated. Can you see the overestimation happening over here? Yes, sir. Because Yes, sir. the force is very, very weak. Okay? Like it is something which is so weak that very low temperatures are required for it to actually make some impact, make the atoms solidify. ठीक है, तो ये तीन टाइप के रेडियस हम लोग रिपोर्ट करते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक एंड van der Waal, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है कोवेलेंट। ठीक है, मेटालिक भी कई बार यूज हो जाता है, van der Waal इज रेयरली यूज्ड। हाउएवर आपको ये तीन टाइप्स के रेडियस क्या होते हैं उनका एक बैकग्राउंड जरूर रहना चाहिए दिमाग में। सर, ठीक है, हाँ बोलो सर एटॉमिक रेडियस तो ये होता है ना, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस। नहीं, that is not something which we will be able to calculate theoretically. Sir, Okay, so हम लोग क्या कर रहे हैं, we are using experimental ways and techniques to come up with the size of atom based upon what I have just discussed with you over the last half an hour. थोड़ा ऊपर Sir? जाना एक सेकंड। हाँ,
बोलो बोलो। Sir. So van der Waals force of attraction and van der Waals as radius are the same. एक फोर्स है और एक रेडियस है, तो दोनों चीजें तो अलग है, बट यस द कनेक्टिंग साइंटिस्ट इज सेम. Okay, sir. Sir, how can van der Waals even be accepted? Like you're completely changing the temperature and state. Yeah, so that is what I said, that van der Waals radius isn't something that we are going to anyways use in this chapter for our sake of comparisons, किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा, ठीक है, हम लोग यूज करने भी नहीं वाले हैं. Okay. So can you explain that overestimation thing you said? हाँ, आप मतलब देखोगे ना यहाँ पर लाइक जो एक्चुअल एटम्स हैं, इनके जो न्यूक्लियाई हैं, ये मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली कैसे बनाया हुआ है, दूर दूर बनाया हुआ है ना. हाँ सर. तो अगर इफ आई टेक हाफ ऑफ दैट एंड रिपोर्ट दैट एज रेडियस, देन आई एम लाइक ओवर एस्टिमेटिंग. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. सर ये तो एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ही हो गया ना. हाँ, आप बोल सकते हो, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा ना यहाँ पर H2 के लिए, तो यहाँ पर जो एक सक्सेसिव एटम्स थे बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का डिस्टेंस लेके मेजर कर लिया. तरीका है, बता दिया है, डिफाइन कर लिया है, ऑल्दो हमारे ज्यादा काम आने नहीं वाला. ठीक है सर, तीनों में डिफरेंस बस वो एलिमेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं उसका ही है ना, द फॉर्मूला इज सेम. Right. So depending upon the type of element and depending upon the technique we are using. क्या देखे? So depending upon the type of element and the technique that is being used, you have different types of these radius measurements. जिसमें जैसे मैंने आपको बताया, covalent and metallic are the most important. इनको ही ध्यान में रखना. Van der Waals is like ठीक है, doesn't really bother us much. Now let's look at the factors that talk about atomic radius. So what are the factors that influence atomic radius? So पहला factor है which is called as principal quantum number of the valence electrons. Right? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, that अगर n का वैल्यू बढ़ेगा, लाइक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन अ हायर शेल और हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन साइज ऑफ एटम वुड बी ग्रेटर. द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड याद है आपको, कैसा था टेबल में? अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है सर. अक्रॉस अ कम होता है. लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है. ठीक है. एंड डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कैसा रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग जज करना चाहेंगे दैट साइज का ट्रेंड कैसा होता है. ठीक है. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स, लेट्स लुक एट द ट्रेंड. तो अक्रॉस अ पीरियड कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो n तो कांस्टेंट है, राइट? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही शेल में रहने वाला है अक्रॉस अ पीरियड, है ना? बट z इफेक्टिव बढ़ जाएगा. लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, z इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो जाएगा? ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज करेगा. ठीक है. तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड पीरियड, लिथियम से लेकर हम लोग फ्लोरीन तक जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है. नाउ यहाँ पर अगेन यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनी वैल्यूज. ठीक है. मैंने जस्ट ये वैल्यूज इसलिए आपके सामने लिखी हैं कि आपको एक आइडिया लगे दैट जो साइज चेंज है अक्रॉस अ पीरियड वो ग्रेजुअल होता है. ठीक है. इट इज लाइक अ रिलेटिवली gradual change as compared to
when you go down the group. Down the group क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो n का वैल्यू बढ़ जाएगा. यस सर. n का वैल्यू बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा. z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो उससे इतना फर्क पड़ नहीं रहा है, तो दोनों फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट इज दैट साइज ऑफ एटम्स बढ़ जाएगा एज वी गो डाउन द ग्रुप, राइट. सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, लेट्स से इफ आई आस्क यू टू कंपेयर द साइज ऑफ एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, अल्कली मेटल्स में मैं जा रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो साइज बढ़ रहा होगा. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट द डेटा. नाउ सर डेटा कॉपी करने की जरूरत है क्या नोट्स में? हाँ, डेटा आप कॉपी करके रखो नोट्स में, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उस डेटा से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज देखना चाह रहे हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं, दैट साइज इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली डाउन द ग्रुप, whereas across the period the change is gradual only. Sir, actually for lithium and for lithium we are measuring the metallic radius, right? नहीं, यहाँ पे हम लोग अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, सबका कोवेलेंट रेडियस मेजर करा जा रहा है. Okay sir. But from beryllium to lithium big changes there, right? Somewhat big. Yeah. Okay sir. सर ये जो चेंज हो रहा है उसका कोई मतलब पैटर्न है कि ऐसे रैंडमली चेंज होता है? तुमको क्या दिख रहा है? What is the pattern that you are seeing? सर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है. नहीं, मतलब मैथमेटिकली तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो अलग है. जो पैटर्न मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज हो रहा है. यस सर. और यहाँ पर डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है. दैट इज द ओनली पैटर्न दैट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू. ठीक है, इफ यू आर आस्किंग मी सर यहाँ एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है कि एजीपी बन रहा है, तो वैसा कुछ नहीं होगा. तो ओके सर. वर्ड समझ में आते हैं तुम्हें, एपी जीपी? यस सर, एपी आता है, सर. नहीं आता. हाँ, तो वैसा कुछ मत करना है यहाँ पे. नहीं, नोबल गैसेस का हम लोग निकाल दिया ना डिस्कशन से. लाइक वी विल कमेंट अबाउट इट जब मैं एक्सेप्शंस का डिस्कशन करूंगा. बट नोबल गैसेस आरंट सपोज्ड टू बी कंपेयर्ड बिकॉज लाइक दे आर अ डिफरेंट मेजरमेंट ऑल टुगेदर. उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडिया या मेटालिक रेडिया नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं. सो व्हाट वी एंड अप डूइंग इज देन फिर उसका वंडर वॉल रेडियस ही रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड दैट इनएविटेबली काइंड ऑफ चेंजेस द ट्रेंड. तो अचानक से मैं यहाँ पर आपके सामने नियॉन लिख दूंगा तो उसका साइज बहुत सा बड़ा सा होगा. ठीक है, तो वी विल हाईलाइट दैट एज पार्ट ऑफ एक्सेप्शंस, बट नॉट समथिंग व्हिच इज यूजफुल इन दीस comparisons. Sir, not only that, no sir, and the all completely filled is also there, no sir. So all the cells will be in a proper position. It won't be too close or it won't be too far away, no sir. Well, I can't comment because उनके लिए हमें रिपोर्ट ही वंडरवॉल्स रेडियस करना पड़ता है. ओके सर. ठीक है. नाउ अब इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग जिस पैटर्न में हर एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग पहले वो प्रॉपर्टी समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी है क्या, देन उस प्रॉपर्टी के फैक्टर्स पढ़ते हैं, उसके ट्रेंड्स पढ़ते हैं, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस ट्रेंड्स में इफ देयर आर सर्टेन नोटिसेबल exceptions and their explanations. So in this property of atomic size हमने इसका मोटा मोटा broad trend समझ लिया है that across a period size decrease होते हैं, down the group size increase होता है. But इस trends में there are certain noticeable exceptions. So सबसे पहले हम लोग S and P block में ये जो exceptions है वो notice करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना that across a period S and P ब्लॉक में जैसा हमने नोटिस किया साइज डिक्रीज होता है, राइट. बट व्हेन वी नोटिस नोबल गैसेस what we see is that the reported radius is quite high. In fact, it is higher than all the elements that are there in the entire period. मतलब अगर यहाँ पे नियॉन का मुझे रिपोर्ट करना होता तो वो लिथियम से भी ज्यादा साइज मुझे रिपोर्ट करना पड़ता. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अगर लिखता
तो कुछ ऐसा होता which doesn't make much sense, and the reason why it doesn't make much sense is because of the fact that for neon the radius that is reported is van der Waals radius. ठीक है, so we highlight this as part of our exception. Another important, very important exception to be noticed in the S and P block is when you go down the group in the 13th column. ठीक है, जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स याद है सबको? ये Yes sir. बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सो जनरल एक्सपेक्टेशन हमारी कैसी रहेगी? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा. However, when we observe the radius of aluminum and radius of gallium, we find them to be very close to each other. ठीक है, the size of these two elements is very close, which is not what we expect when we go down the group. So it is an exception to be remembered. And इसके पीछे का जो रीजनिंग, जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है. ये गैलियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा? This is present in fourth period. Fourth period. Yes sir. Right. Fourth period में कैसा रहता है? पहले यहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उसके बाद D के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उसके बाद ये P ब्लॉक की बारी आती है. Yes sir. राइट. फोर्थ पीरियड याद है कि नहीं याद है आपको? याद है सर. ठीक है, ये चीजें देखो कनेक्ट हो जानी चाहिए. अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रही हैं तो आई वुड इंसिस्ट कि एक पीरियोडिक टेबल साथ में लेके बैठो. ठीक है, like paste it in your room somewhere so that you can फटाफट look at it when I am asking you to refer to certain row or certain column. अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रहता तो बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, बट बार बार मेरे लिए चीजें रिपीट करना मुश्किल रहेगा, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी अंडर दिस अजम्पशन कि अभी बच्चों को जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है वो एकदम बराबर से याद हो गया है, एंड जो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मैंने बताए थे वो भी लोकेशन उनकी क्या है, कहाँ है, वो भी याद हो गया है. ठीक है, एंड आई विल बी अज्यूमिंग दिस एंड मूविंग अ बिट फास्टर. ठीक है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा कि देखो ये फोर्थ पीरियड था, इसमें पहले यहाँ पे ये भर रहा था, इसमें फिर ये हो रहा था. आई विल बी अज्यूमिंग कि ये तो मैंने बोल दिया फोर्थ पीरियड, तो बच्चों को क्लिक हो गया कि हाँ फोर्थ पीरियड में लाइक पहले 3D के भी एलिमेंट्स फिल होते हैं. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट वी बोथ आर ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट हैज बीन टॉट. ठीक है, तो रिविजन करके बैठा करो. अगर रिविजन नहीं करोगे देन दिक्कत ये हो जाएगी दैट यू एंड आई विल बी ऑन डिफरेंट पेजेस. मैं अज्यूम करके बैठूंगा आपको आता है एंड यू विल बी लाइक कि अरे पढ़ा ही नहीं. फिर आपके लिए वो लेक्चर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा ही चलेगा. यू विल नॉट फील लाइक इंटायरली कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट लेक्चर. सो गैलियम के पहले व्हाट हैपेंस इज दैट 3D सीरीज के एलिमेंट्स फिल हो रहे होते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट what we highlight or what we say as a reason is that जो 3D के electrons थे, they did not do a good job in shielding the nuclear charge जितना उनको करना चाहिए था. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है that S, P, D, F के जो electrons होते हैं उसमें S are good at shielding, P उनसे थोड़ा कम होते हैं, right? D and F are poor shielders, right? तो यहाँ पर गैलियम के पहले जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स भरे, जो इलेक्ट्रॉन्स भरे, उनको जितनी शील्डिंग करनी चाहिए थी उतनी अच्छी शील्डिंग उन्होंने करी नहीं. एज अ रिजल्ट पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा. Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट गैलियम के एटम का साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है. इट इज नॉट एज लार्ज एज एक्सपेक्टेड बट क्वाइट सिमिलर टू द साइज ऑफ एल्यूमिनियम. तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और ये उसके पीछे का रीजनिंग है. ठीक है, अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए है. दैट लेसन इज समहाउ कनेक्टेड विद योर डाउट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट want to ask me कि सर what about the next column? Carbon, silicon, germanium, SN,
Pb, right? This is what is there in the next column. The same thing is happening with germanium as well. जर्मेनियम के पहले भी तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होंगे. Like if I look at the configuration of germanium, germanium का configuration होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 and then 4p1, है ना? ऐसा होगा जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन. तो आप बोलोगे मुझे कि सर इसमें भी तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, राइट? ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी पुअर शील्डिंग कर रहे होंगे, राइट? To which what should I say? Are they going to do poor shielding or are they not going to do poor shielding? My answer is yes, they are going to do poor shielding. That is a fact, that is an established understanding, right? Then you may ask me कि sir अगर ये poor shielding कर रहे हैं, then why isn't there is an exception in the size over here? Why isn't silicon से germanium में? Sir, after 3p 3d, right? Sorry? Sir, after 3p 3d, right? 3p के बाद में तो आ रहा है 3d, हाँ. So because of that only it is not an exception. What? You did not make any sense. हाँ, ये 4p2 जरूर रहेगा, करेक्ट, ये क्योंकि 14th ग्रुप है. Anyways, stop interrupting in between. So as I was saying that यहां पर, ठीक है, ग्रुप 13 में we highlighted that there is an exception. Aluminium गैलियम का साइज सिमिलर है, right? And I gave an explanation for that as well कि गैलियम के पहले यहां पर 3d सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 3d सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर पुअर एट शील्डिंग. तो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से गैलियम का साइज श्रिंक हो गया, राइट? नाउ यू माइट एंड अप आस्किंग मी दिस डाउट that sir why isn't the same thought process applicable in group 14 या फिर group 15? like इसके आगे भी यही चीज applicable रहनी चाहिए, that जर्मेनियम जो है उसमें भी 3d के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, राइट? तो वो 3d के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, तो जर्मेनियम का भी साइज जो है वो श्रिंक हो जाना चाहिए. इट शुड बी ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू सिलिकॉन. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. The thing is, when we are looking at a certain property like atomic size, what we see is that there are multiple factors that affect that property. And when these factors are giving the same trend, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक consistent सा trend मिलने लग जाता है. But when these factors oppose each other, when these factors contradict each other, then कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, इस चीज का प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है. इस चीज को प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा ना बोल रहा हूं आपको कि देखो हम लोगों ने ये दो फैक्टर पढ़े, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसका वेटेज है 33% और इसका वेटेज है 67%. क्या ऐसा मैंने आपको बताया कुछ? नो सर. नो सर, राइट? सो ऐसा बताऊंगा भी नहीं, ऐसा किसी बुक में आपको मिलेगा भी नहीं दैट वी आर पुटिंग सम वेटेज कि यू नो ये ज्यादा अच्छा फैक्टर है, ये कम अच्छा फैक्टर है, इसका ये वेटेज, ऐसा कभी नहीं मिलेगा. अब जहां पर दोनों फैक्टर्स लाइक एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, वहां पे चीजें स्मूथ रहेंगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा कि अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, n कांस्टेंट है, उससे रेडियस पे फर्क नहीं पड़ रहा, z इफेक्टिव बढ़ रहा है, उससे r कम हो रहा है, तो हमने एक कंसिस्टेंट सा ट्रेंड लिख दिया कि हाँ r कम हो रहा होगा अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली. बट कहीं पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट हैपेंड, क्योंकि यहाँ पर जो n वाला फैक्टर है वो क्या कह रहा है, नीचे जा रहे हो तो मतलब साइज बढ़ना चाहिए, है ना? यस सर. एंड z इफेक्टिव
यहाँ पर हमने क्या बोला, पुअर शील्डिंग हुई, पुअर शील्डिंग की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ गया एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में। तो ये वाला क्या कह रहा है कि पुअर शील्डिंग होने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से R कम हो जाना चाहिए, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट करके एक दूसरे को। यस सर। अब जब कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, दैट कौन सा डोमिनेट कर पाएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग एक्सेप्शंस याद करेंगे। आई थिंक ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी बच्चों को बताया था, समझाया था, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी एक्सेप्शंस देख रहे थे। एक्सेप्शंस आर नॉट टू बी प्रिडिक्टेड, दे आर टू बी रिमेंबर्ड एंड अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पर कैसा हो रहा है दैट ग्रुप 13 में दोनों फैक्टर्स ने कॉन्ट्रडिक्ट करा एंड व्हाट वी सॉ इज दैट Z इफेक्टिव ने एक्चुअली काफी डोमिनेटिंग रोल प्ले करा, जिसकी वजह से साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो गया, ठीक है। ग्रुप 14 में कि ग्रुप 15 में या आगे वाले ग्रुप्स में मे बी दैट फैक्टर डिडंट प्ले अ रियली डोमिनेटिंग रोल, ठीक है। पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्टर तो फैक्ट है, राइट। But did it play a dominating role? Did we see a fluctuation in the size trend? The answer is not really. So we don't really then remember those examples as exceptions. जो exception था वो हमें दिखा, हमने उसको याद करा और हमने उसके पीछे का reasoning समझा. Is this clear with everyone? Yes, sir. Now, having said this, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, दिस इज एक्चुअली अ ट्रू फ्लेवर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज स्टार्टिंग विद यू, ठीक है। इसके पहले के जो चैप्टर्स थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, दे वर रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स, दे वर रिलेटिवली इजी चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक। कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड इन केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सम स्टूडेंट्स टेंड टू डेवलप अ फोबिया, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब मैथ्स इतना अच्छा चल रहा है या फिजिक्स इतना अच्छा चल रहा है, उसमें लाइक विजुअलाइजेशन होता है, लाइक एक सिंपल सा लॉ पढ़ा देते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ, और उसके बेसिस पे सर हम लोग 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, लाइक किसी भी सिचुएशन में कैसे भी अप्लाई कर लो, राइट। बट ये भूल जाते हैं कि दोज एप्लीकेशंस आर आल्सो समथिंग व्हिच आर डन बाय कीपिंग नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें भी हम लोग कुछ अजम्पशंस, अप्रोक्सीमेशंस ले लेते हैं और तभी वो सब चीजें अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। बट केमिस्ट्री में हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ वही करना होता तो मैं यहीं तक आपको बता के छोड़ देता, जितना आपने 9th क्लास 10th क्लास में ICSE में पढ़ा था कि सर ये ट्रेंड होता है। लाइक आई एम श्योर 9th क्लास 10th क्लास में जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा ICSE में, दे वुड हैव लव्ड दिस चैप्टर। सर बहुत ही सिंपल है, अक्रॉस ए पीरियड ऐसे होता है, डाउन द ग्रुप ऐसे होता है, और मजा आ जाता है, मतलब एकदम लाइक रियली गुड, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग जेई एडवांस के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बीच में बताता रहूंगा। प्रैक्टिकल चीजें कहाँ पे कवर हो रही है, इन एक्सेप्शंस में, ठीक है। एंड ये जो एक्सेप्शंस होंगे आपके लिए ये रैंडमली पॉपअप करेंगे, मतलब आप लाइक प्रिडिक्ट नहीं करोगे एक्सेप्शंस, आपसे बोला नहीं जाएगा कि बैठ के प्रिडिक्ट करो। These are exceptions which are randomly popping up because of whatever practical reasons. What I'm going to ask you or expect from you is कि ये exceptions को अब आप ध्यान में रखना। Questions इन्हीं पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। So make sure that you are putting in an extra effort in remembering these exceptions, ठीक है। No matter it's a ratta, it is a ratta. I completely agree with it. I don't deny that, ठीक है। However, that ratta will become relatively easier for you, relatively digestible for you, if you also understand the reason or explanation for those exceptions, ठीक है। Even after doing that, आपको एक discomfort रहेगा ही सही,
कि सर मतलब दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ लर्निंग, दिस इज नॉट हाउ आई वुड वांट टू लर्न अ टॉपिक और सब्जेक्ट, सो उसके लिए आपके पास में एक सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है दैट दिस इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग, इन द सेंस जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो दीज आर क्वेश्चंस दैट आर सपोज्ड टू बी डन विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अगर आपको आता है तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको स्कोर मिल जाएगा, एंड यू विल सेव टाइम विच यू कैन देन यूज इन मैथ्स और फिजिक्स। बट अगर आप फोबिया डेवलप कर लोगे कि नहीं मतलब मुझे तो लाइक ये रट्टा मारना ही पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल एंड अप लूजिंग स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इफ यू आर रियली गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा इनफैक्ट आईआईटी में, बट रैंक नहीं आएगी। किसी भी रैंकर से पूछ लेना, आपके जो सीनियर्स या सुपर सीनियर बैच के बच्चे होंगे, अगर रैंक चाहिए तो यू कांट अफोर्ड टू लीव चैप्टर्स, यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन इजी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो भी 3 नंबर का 4 नंबर का आएगा, और कोई मैथ्स का या फिजिक्स का इंटेंस क्वेश्चन होगा जिसमें काफी सारी सॉल्विंग करनी होगी, वो भी 3 या 4 नंबर का ही आएगा। So you will have to be mature about this fact that this is something which requires a different way of learning. So you will have to adapt to it and make sure that something you stick to. ठीक है, ज्ञान समझ में आया? सर तो ये एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? यस सर। यस सर। आपको कुछ कह रहा था बीच में? सर ये एक्सेप्शंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा? नहीं। ओके सर। नाउ ये एक्सेप्शन के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मतलब कि आएंगे विच ना, एलिमेंट? आएंगे, यू विल सी, होमवर्क मिलेगा आपको, बुकलेट में क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल गेट टू सी। सो ये एस एंड पी ब्लॉक के 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। अच्छा, अब नोटिस करना डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर अक्रॉस अ पीरियड हम लोग जा रहे हैं, तो व्हाट इज आवर जनरल एक्सपेक्टेशन? द जनरल एक्सपेक्टेशन इज साइज वुड डिक्रीज, ठीक है, दैट इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन दैट वी विल हैव। हाउएवर व्हेन वी लुक एट द डेटा, व्हेन वी फाइंड हाउ द ट्रेंड इज, तो हमें कैसा दिखता है? अगेन नो नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज। हम लोग जब अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये पर्पल कलर में देखोगे तो पर्पल कलर में 3D सीरीज के एलिमेंट्स, 4th पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 4D सीरीज मतलब क्या हो गया? 5th पीरियड, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स 5th पीरियड वाले। 5D सीरीज क्या हो जाएगा? 6th पीरियड, 6th पीरियड के एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक। तो इन सब में हम लोग अक्रॉस अ पीरियड एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेंड किस तरीके का ऑब्जर्व कर रहे हैं? दैट मोस्ट ऑफ द पीरियड में लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम्स of elements is in a decreasing manner. However, somewhere in the middle or somewhere around the middle of the period, we find that size are in a period, the size are almost like constant. There is hardly any difference between size of the elements. And then towards the right hand side of the period, जो लास्ट के 2-3 एलिमेंट्स हैं उस पीरियड के, उनके लिए हमें एक एक्सेप्शनल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है, दैट साइज इनफैक्ट बढ़ रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होने का, बट इन केसेस में साइज बढ़ रहा है, राइट। ये 3 रीजन समझ में आ रहे हैं, ट्रेंड के दिख रहे हैं? कैन यू विजुअलाइज देम क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because that copper has an exception configuration, sir. हाँ, अब मैं इनका एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ, ठीक है। अब इनका पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या दिख रहे हैं।
अब when we notice the elements जिनमें हमें ऐसा चेंज इन ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, लाइक कॉपर जिंक दिख रहा है, या फिर आपको प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी, ये जो एलिमेंट्स हम लोग नोटिस कर रहे हैं जिनमें ऐसा इंक्रीज इन साइज ऑब्जर्व हुआ, तो उसमें व्हाट वी फाउंड आउट, ठीक है, व्हाट वाज आवर अंडरस्टैंडिंग वाज, यहाँ पे नोटिस करना दैट दे आर एलिमेंट्स व्हिच हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस एंड उनमें फुल्ली फिल्ड n-1d सबशेल प्रेजेंट है. right? आपको याद है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता था? यस सर. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड टू बी 4s1 3d10, 4s1 3d10, राइट. या जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता था? आर्गन 4s2 3d10, 4s2 3d10, राइट. तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, इनफैक्ट आप बाकियों का भी ड्रॉ करोगे, अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे इन पे ध्यान दिया होगा, तो ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सिल्वर, गोल्ड के, प्लेटिनम, पैलेडियम के. तो इनमें ये जो n-1d सबशेल है ये फुल्ली फिल्ड है. तो उसके वजह से क्या बोला जा रहा है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? आउटर इलेक्ट्रॉन ये ns वाला हो जाएगा ना? यस सर. राइट. ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, दिस गेट्स मोर शील्डेड. जो इनर n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, तो उनका क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर शील्डिंग, और यू कैन से लेसर न्यूक्लियर चार्ज, लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है. राइट. तो हम लोग कैसा बोलेंगे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और मेरा ये आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है. अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये कैसे हैं? दे हैव लाइक अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. बिकॉज दे हैव लाइक अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर कॉजिंग मोर शील्डिंग, दे आर स्क्रीनिंग बेटर, दे आर शील्डिंग बेटर. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, ये जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था, उतना अच्छा न्यूक्लियर चार्ज ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वी फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज इन दीज एलिमेंट्स. ठीक है सर, मेरे को रीजन नहीं समझे वाला, आपने जो समझाया अभी. हाँ, रिपीट करो, मैंने क्या बोला एक बार. सर, आपने बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन अच्छा शील्डिंग ये नहीं कर सकता. आउटर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं कर रहा है. शील्डिंग कौन करते हैं? सर, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करते. तो एक बार उसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. रीड दिस वर्ड बाय वर्ड. यस सर. The outer electron, that is ns electron, is more shielded by inner n-1d electron in symmetrical distribution. Thus, outer electron experiences lesser Z effect, which results in increase of size. ठीक है. अब बताओ इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आई. So can you explain symmetrical distribution again? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि फुल्ली फिल्ड है ना. तो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यू हैव डी ऑर्बिटल्स. कैसे रहते हैं डी ऑर्बिटल्स? ये जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स वाई हो गया, राइट. ऐसे ही फिर लाइक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ऐसे ही डी वाई जेड भी होगा, राइट. डी एक्स जेड भी होगा, राइट. एक डी जेड स्क्वायर भी होगा. नाउ ऑल दीज ऑर्बिटल्स दे आर कंप्लीटली फिल्ड. ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक खाली है. बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड, देयर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. ऐसा हम बोल सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. यस सर. राइट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अच्छे से स्क्रीन हो पा रहा है. yes, मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे होगा ना, 4s का. 4s का साइज 3d से तो बड़ा ही होगा ना.
यस सर। राइट, तो जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है, it is getting more shielded by these fully filled inner subshell. As a consequence, इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ जा रहा है। यस, थैंक यू सर। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे आप नोटिस करना दैट व्हेन वी लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ट्रेंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कैसा था? इट वाज मोस्टली नॉर्मल ओनली, दैट लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, एंड देन द साइज चेंज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लाइक इट इज ऑलमोस्ट ग्रेजुअल। तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आता है वो आप नोटिस जरूर करना। The size decrease across a period in D block is not as rapid or steep as observed in P block. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि P block में, ठीक है, मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा है, P block में ऐसा हो रहा है। बट डी ब्लॉक में व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट ये जो चेंज है ये लाइक एक काइंड ऑफ ऐसे ग्रेजुअल सा हो गया, इट डिडंट चेंज एज फास्ट एज इट वाज इन द केस ऑफ पी ब्लॉक। तो उसके पीछे का क्या रीजन यहाँ पे समझाया जा रहा है दैट इफ यू नोटिस द जेड इफेक्टिव कैसे लिखा जाता है? जेड इफेक्टिव लिखा जाता है एज जेड माइनस सिग्मा, राइट। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो z का वैल्यू है वो तो 1 से बढ़ता है, एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाता है ना, और जो सिग्मा है वो कैसे बढ़ता है? व्हेन इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहा है। तो इफ यू रिमेंबर p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहा था? इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू गेट एडेड इन द NS-NP ग्रुप ओनली, जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, राइट। एंड यहां पर जो जैसे 3D सीरीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कहां पर ऐड होता है? N-1D सबशेल में। इफ यू रिमेंबर हम लोग जैसे P ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स के तो कैसे लिखने में आते हैं, राइट? NS2, फिर ये NP1, फिर NS2 NP2, NS2 NP3, इस तरीके से आता है P ब्लॉक में। जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यस सर, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो कहां पर आ रहा है? सेम NS-NP ग्रुप में ही आ रहा है, जिसमें हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, राइट। एंड जबकि यहां पर अगर हम डी ब्लॉक में नोटिस करें, जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है वो तो NS2 है, और जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहां पर होता है? N-1D में होता है ना, राइट। जैसे स्कैंडियम हो गया, ये टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है, राइट। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N-1th शेल में जा रहा है, N-1th शेल में जा रहा है। तो याद है इसका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना था? हमने पढ़ा था एक बार, 0.85। यस सर। और यहां पर अगर सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 था, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Z इफेक्टिव का जो चेंज है वो किसमें ज्यादा फास्ट हो रहा है, किसमें सिग्निफिकेंट हो रहा है और किसमें ग्रेजुअल हो रहा है, तो आप बता सकते हो मुझे? P ब्लॉक में द चेंज इज सिग्निफिकेंट ना, 1 - 0.35
0.35, यानी कि 0.65 से चेंज हो रहा है P ब्लॉक में, और D ब्लॉक में कैसे चेंज हो रहा है? 0.85, सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव तो है वो तो 0.5 से ही डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो इफ आई मेक दिस स्टेटमेंट कि जो Z इफेक्टिव का इंक्रीज है वो D ब्लॉक में ग्रेजुअल है, डज दैट मेक सेंस? यस सर। अगर Z इफेक्टिव का इंक्रीज ग्रेजुअल है तो साइज का डिक्रीज भी ग्रेजुअल होगा D ब्लॉक में, डज दैट मेक सेंस? यस सर। एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दैट एज वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, जो साइज का चेंज है वो ग्रेजुअल है, इट इज नॉट एज स्टीप एज इट वाज इन केस ऑफ T ब्लॉक। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना। मैं एक बार इसको एक ही फ्रेम में लेके आ जाता हूँ। हम लोग साइज का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर, राइट? एंड इसमें हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज इन डी ब्लॉक साइज पहले ग्रेजुअली साइज पहले डिक्रीज करता है, which is normal, that was expected, but then somewhere in the middle the size change is very like gradual, size change is almost negligible, like size is almost constant, and towards the end of the group, towards the later part of the group, size in fact increases. अब इनके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आना चाहिए। क्या क्या एक्सप्लेनेशन था? जहां पर साइज इंक्रीज होने लगा वहां पर हमने नोटिस किया दैट बिकॉज ऑफ दीज फुल्ली फिल्ड n-1d subshell, what we are observing is that the outer electrons experience lesser effective nuclear charge. जितना उनका एक्सपीरियंस करना चाहिए था उनसे कम करते हैं, क्योंकि ये जो पूरे फुल्ली फिल्ड सबशेल है ये क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अच्छा शील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से यहां पर साइज का एक इंक्रीज ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, वेयर एज यहां पर जो मिडिल वाला पार्ट था जहां पर वी वर सीइंग दैट साइज वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके पीछे का हम लोगों ने रीजन समझने की कोशिश करी, तो उससे ये समझ में आया दैट ये साइज का डिक्रीज ग्रेजुअल था और होना भी चाहिए था, बिकॉज जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन n-1th शेल में जा रहे हैं। n-1 शेल के अंदर जाने पर शील्डिंग हो रही है, विच इज बेटर एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज डन इन से कंपैरिजन टू P ब्लॉक। P ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन था वो सेम बैलेंस शेल में ही ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये अक्रॉस अ पीरियड का ट्रेंड समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनी क्वेश्चन? सर लास्ट 2 मिनट में आपने जो बताया वो फिर से बताएंगे? आई एम सॉरी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, अब यहां पर आप नोटिस करो डाउन द ग्रुप, what is the general expectation down the group? Atomic size increases. Atomic size increase करेगा and Z effective almost constant. However, what we find is that यहाँ पे आप नोटिस करोगे सेम डेटा जो है हमने ऑब्जर्व किया, हम लोग जब 3D से 4D जा रहे हैं, ये जो पर्पल वाला है वो 3D के एलिमेंट्स है और ग्रीन वाला जो है 4D के एलिमेंट, आपको दिख रहा है साइज बढ़ रहा है। Sir, but this is across this, no, sir. What is what? Sir, this graph is across the period, no, sir. But now I am not asking you to look left to right. I am asking you to look ऐसे नीचे से ऊपर। Okay, sir, got. ठीक है,
सो लुक इट इन दिस वे दैट ये मेरे 3D के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड देन व्हेन आई गो डाउन द ग्रुप ये मेरे 4D के एलिमेंट्स हैं, ग्रीन वाले जो है. कैन यू सी द साइज इंक्रीज्ड? Yes, sir. Right, consistently you are seeing that Yes, 3D से 4D जा रहे हैं, हम साइज बढ़ रहा है, which is what our expectation is also. This is our expectation, this is our normal thing, that down the group जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है. But then do you see certain exception? Yes, sir. When you yes, sir, they are equal. go from 4D to 5D, like when you go from 5th period to 6th period, तो यहाँ पर what we are seeing is that 5D के जो elements हैं उनका साइज 4D के elements से almost similar है. Yes, sir. अभी ऐसा कुछ आपने थोड़ी देर पहले देखा था? There was something like this kind of an exception observed. Yes, sir. Aluminium and gallium. Yes, sir. Aluminium and gallium के केस में, right? उसमें याद है क्या रीजन दिया था, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था अपन ने? Yes, sir. Sir, because of 3D elements, सर गैलियम का है ना ये बढ़ जाता है सर. Because of the poor shielding of 3D electrons, क्या हो रहा है? Z effective बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के जैसा ही था. ठीक है, याद है अपन ने ये देखा था, ये अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है. Sir, what about 60 series? है ना, यहाँ पर ये अपना पीरियोडिक टेबल रहता है. तो हमने बोला था कि यहाँ पर, ठीक है, ये एल्यूमिनियम था और ये गैलियम था. ठीक है, दिस वाज एल्यूमिनियम एंड दिस वाज गैलियम. तो हमने बोला था कि इसके पहले यहाँ पर ये 3D सीरीज फिल होती है, जिसकी वजह से ये एक फ्लक्चुएशन देखने को ऑब्जर्व हुआ. ठीक है, अब आप नोटिस करना, व्हाट आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर इज दैट बिटवीन द 4D एंड 5D एलिमेंट्स, ठीक है, जब हम 4D से 5D जा रहे हैं, ठीक है, ये तो 3D सीरीज हो गई. यस सर. 4D सीरीज हो गई, ये 5D सीरीज हो गई. तो जब हम 4D से 5D जा रहे हैं, यानी कि 6th पीरियड में जा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर डू यू रिमेंबर देयर वाज एन एंटायर F ब्लॉक? यस सर. सर, दैट गेट्स फिल्ड. Yes. And अब what is happening is that these F block elements, इनके जो F के इलेक्ट्रॉन्स हैं, right, जो कि फिल हो रहे हैं, they are again poor at shielding. Yes, sir. Because of this poor shielding of 4F electrons, what we see is that जितना Z effective यहाँ पर होना चाहिए था, उससे ज्यादा हो जाता है. ठीक है, because ये 4F के इलेक्ट्रॉन्स अच्छी शील्डिंग नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा. Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा. एंड दिस साइज इज कॉल्ड एज, और डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है क्योंकि ये लैंथेनाइड्स होते हैं ना, जो यहाँ पे फिल होते हैं, दीज आर लैंथेनाइड्स. तो इन लैंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं, वो किधर फिल हो रहे हैं? 4F में. यस सर. यस सर. राइट, एंड 4F में वो फिल हो रहे हैं, बट वो इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए. तो उसकी वजह से यहाँ जो 5D के एलिमेंट्स हैं, उनका Z इफेक्टिव बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो गया है. सर, व्हाट अबाउट RF, TB, SG and all like that series? Sorry? Sir, that period number 7, after that acid time series, there are some elements, right? What about that, sir? नहीं, मतलब आप दोबारा क्लियरली रिपीट करो, आपका क्वेश्चन क्या है? Okay, sir. हाँ, रिपीट करो ना, क्या है क्वेश्चन? Sir, after that acid nons, there are atomic number 104, 105, that and all. मतलब यू आर आस्किंग मी कि लाइक 6D सीरीज में क्या होगा? Are you asking? No, sir. Like that last period number after that acetons series, 104, that element number, atomic number is there, no, sir? That मतलब you are asking कि ये P block में क्या होगा?
इधर no sir, in that D block itself. D block, that after that lanthanide and antinide, there is some elements, no sir, that elements. So lanthanides ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका lanthanum आ जाता है. Right? Sorry Yes, sir. Sir, after lanthanum another series is there, no sir? लैंथेनम के बाद में यहाँ पर आपका ये पूरा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर आई थिंक 71 तक आता है. Yes sir. राइट, ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक. Sir, actually after that series there are some elements, right? तो वो यहाँ से शुरू होते हैं ना, 72 से लेकर आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पे. Yes sir. तो उन्हीं के बारे में तो कह रहा हूँ. दैट इज दीज sorry sir, not that one. Under that elements there are RF, DB, that elements is there, no sir? That is what then I was asking ना. तुम इसके नीचे के एलिमेंट्स पूछ रहे हो क्या? 6D सीरीज पूछ रहे हो क्या? हाँ, yes sir. तो 6D सीरीज का डिस्कशन ही नहीं हो रहा ना यहाँ पर. अभी 3D, 4D, 5D सीरीज का डिस्कशन हो रहा है ना. And the reason why we are not interested in the series below this is because again they are radioactive elements. Okay sir. Sir, not much bothered about them. Sir, that means that sir, they will be similar to these 10 nodes. Sorry? So that means that trend of that elements is not similar to these trends, sir. नहीं, मैंने डिस्कस ही नहीं करा ना वो ट्रेंड तो. Okay sir, so they won't ask from that. Yeah, they won't. Okay sir. Sir, why there is a means huge difference between that 3D and 4D? Huge difference नहीं है, normal difference ही है. This is something which is normal trend. Size down the group significantly change होता है ना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था. That but like sir 4D और 5D सेम ही एकदम almost, और सर 3D एक एकदम अलग है. अरे तो राजा एक्सेप्शन यहाँ है ना 4D और 5D में. 3D और 4D नहीं है. हाँ सर. मतलब a normal thing should have been something in this way कि ये 3D हो गया, ये 4D हो गया और ये 5D हो गया. हाँ सर. What should have been the normal thing? But गड़बड़ हुई कि ये 5D इतना बड़ा नहीं हो रहा, ये यहीं पे आ गया. तो एक्सेप्शन कहाँ पर है? 5D और 4D के पास. राइट, तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि why is that exception there? Okay sir. Thank you sir. ठीक है, क्या कहते हैं इस एक्सेप्शन को? We call this as lanthanide contraction. That because of the poor shielding of the 4f electrons, the size of 5D elements is not as expected. It is not large. It is in fact quite similar to the size of the 4D elements. ठीक है, ये एक्सेप्शन भी आप ध्यान रखेगा आपको. Yes sir. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने आज, मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ. हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी पढ़ी, व्हाट इट मींस. ठीक है, इसका डेफिनेशन समझा हम लोगों ने. देन उसके फैक्टर्स देखे, उसके ट्रेंड्स देखे, एंड देन उसके एक्सेप्शंस देखे. एक्सेप्शंस में मैंने एस एंड पी ब्लॉक के एक्सेप्शंस आपको पहले करवाए, एंड देन डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस कराए, उसमें अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शंस अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? नो सर, हमको ये पूरा टेबल रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब जैसे आपने जो ड्रॉ किया ना, ये नहीं, आपको ऐसे एक एक एलिमेंट को भरने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू लाइक फुलफिल ईच एंड एवरी एलिमेंट. ठीक है, आप मोटा मोटा यहाँ पे ध्यान रखो. जैसे ये जहां पर स्पेशली इंक्रीज हो रहा है साइज, वो तो आप भर लेना. ठीक है, एंड जहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो वाला भी लिख लेना. ठीक है, ये जो नॉर्मल ट्रेंड वाले हैं वो तो नॉर्मल ट्रेंड वाले, उनको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ओके सर. Sir, that element name we should remember, sir. Which element name? Sir, I mean that while going down there and while coming up like that. नहीं नहीं, इतना आपको जरूरी नहीं है. वो मैंने बताया ना कि नहीं सर, सिल्वर गोल्ड याद रखना पड़ेगा ना. ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया ना, ये वाला मैंने पहले भी याद रखा. गैलियम बोरॉन. ओके सर. ठीक है,
सर सिलिकॉन और जर्मेनियम भी जैसे याद करना पड़ेगा, बोरॉन और गैलियम। हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं है एक्सेप्शन, सिर्फ बोरॉन सॉरी एल्यूमिनियम और गैलियम में ही था। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी यही चैप्टर में कवर होंगे? नहीं, will not be discussing radioactive elements. Sir? Yes, sir. Sir, aluminium is a metal and gallium is a semi-metal. So the behavior will be different. So instead of changing the atomic radius, it got slightly similar. No, sir. Is it that reason also we should remember, sir? आप उल्टा जा रहे हो। हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। आप बोल रहे हो कि मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके फंडामेंटल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा। वुड दैट बी करेक्ट? No, sir. Got it. So you were going to tell about the Google form. हाँ, quickly let me just take 5-10 minutes of your time. I think link आप सबके पास में है? Yes, sir. एक बार शेयर कर देता हूँ। So that Google form is basically to keep an update in terms of how you are doing in that chapter. Just give me 1 minute. Now यहाँ पर आप नोटिस करना, where did that form go? आप लोगों के साथ में मैंने मोल कंसेप्ट का ये फॉर्म शेयर किया था, ठीक है। सर आई एम जस्ट क्विकली शेयरिंग ऑन दैट। ये फॉर्म है आपके सामने? यस सर। Yes, sir. What you have to do is आपका अटेंडेंस आईडी डालना है एंड यूज प्रॉपर डिजिट्स एंड लेटर्स। लाइक पी यहाँ पे 0 है तो 0 डालना, ठीक है। डोंट पुट ओ, आई डोंट नो सम। सर ये आप कभी दे रहे हो? डिसलेक्सिक दे दिया सर मैं, ठीक है। देन इसके बाद में एंटर योर फुल नेम एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर यू हैव द नोट्स ऑफ द चैप्टर और नॉट, ठीक है। be it in soft form, be it in hard copy form, but आपके पास कम से कम नोट्स हैं कि नहीं है चैप्टर के। एटलीस्ट इतना आपने क्लास अटेंड करा है या आपने कम से कम ग्रुप्स पे देखा है कि जो लेक्चर नोट्स आए वो सेव करके रख लें। उतनी मेहनत भी करी है कि नहीं करी है आपने। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू जज इन द फर्स्ट क्वेश्चन। देन द सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर यू हैव made these notes handwritten or you have just collected the printouts. So this is the second question that is asking कि भाई आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस रेडीमेड नोट्स मिल जा रहे हैं ग्रुप पे, सॉफ्ट कॉपी आ जा रही है, उसका प्रिंट आउट निकाल ले रहे हैं और काम चल जा रहा है। आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन है that you should handwrite these notes in a fair notebook. कभी कभी कुछ डिफिकल्ट ड्राइंग का डायग्राम आ गया, ऑर्बिटल्स वगैरह का से समथिंग लाइक दैट, तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो ओके है, एक्सेप्टेबल है। बट मोर और लेस योर नोट शुड बी हैंड रिटन ओनली। यू शुड नॉट मेक दिस एज अ हैबिट दैट कि हाँ प्रिंट आउट मिल रहा है निकाल लेते हैं और उसको पढ़ लेंगे बाद में। दैट्स अ शॉर्टकट थिंग विच इज गोइंग टू हार्म योर लर्निंग, हार्म योर अंडरस्टैंडिंग। देन थर्ड थिंग इज दैट आप लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाई है कि नहीं बनाई है। Like do you have a formula sheet of the chapter or not? जैसे मोल कंसेप्ट है, अब उसमें there are some important concepts that you learned, right? Some important formulas that came along. Yes, sir. तो उन सबको summarize आपने करा है कि नहीं करा है? That is something which is being asked in this question. Then the next question is actually asking, have you really made that formula sheet by yourself or is it something that you have again used shortcut in life? कि कहीं से रेडीमेड उठा लिया, बिकॉज रेडीमेड अवेलेबल। मैं अभी गूगल पे डालूंगा मोल कंसेप्ट फॉर्मूला शीट तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज द आइडियल वे। फॉर्मूला शीट बनाने का मतलब ही यही होता है कि एक स्टूडेंट को दिमाग में एक मैप बन जाए कि ये मेरा चैप्टर क्या था, कैसा था। until unless you do that personally, you are just using like ready-made stuff, it won't be as effective. ठीक है, आपको करना है आप करो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बाद में जाके आप ही को नुकसान होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट जो सिंसियर हैं, जो मैच्योर हैं, वो बच्चे रियलाइज कर ले
जिनको नहीं करना है वो अपनी मस्ती में जिए, बट यू शुड मेक द फॉर्मूला शीट बाय योरसेल्फ, ठीक है. Then after making the formula sheet, you must also validate how well is your formula sheet, right? If you have made the formula sheet and you think it is good enough, then that formula sheet should be able to answer at least 70% to 80% of the questions that have been asked from that chapter in JEE Mains in previous years, right? So मैंने बच्चों के साथ में एक जिप फाइल और शेयर किया था, आई डोंट रिमेम्बर. सर ये मूल कांसेप्ट के लिए है ना, पीरियोडिक टेबल के लिए नहीं ना? हाँ, मूल कांसेप्ट के लिए है. सर ये आपने कहाँ पे भेजा है? ये जेई मेंस का मैंने भेजा था लिंक. आप लोग किसी को अगर याद हो तो ग्रुप पे वापस रीसेंड कर देना ना, वो ड्राइव का एक लिंक था. यस सर. पीवाईक्यूज का. ठीक है, सो एक बार वो नोटिस करना सर. तो उसमें हाँ sir, why only 70 or 80? We should aim for 100, right? That our formula sheet should be 100% able to answer the JEE Mains. नहीं, sometimes see JEE Mains में most of the times the questions do come formula based only, but ऐसा नहीं है कि JEE Mains में हर question ही formula based होता है. Sometimes JEE Mains also asks tricky questions like advanced, कभी कभी आ जाता है. तो अब वैसा क्वेश्चन आपको आपकी फॉर्मूला शीट से डायरेक्टली कनेक्ट होता हो मिले इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस. ठीक है, सो ठीक है, इट इज गुड टू बी रैशनल बट देन अ लिटिल रीजनेबल भी रहना चाहिए, राइट? ओके सर. Possible sir, you can send the PDF after the lecture. What PDF? सर ये नोट्स का सर जो आज करवाया ना, मतलब हाँ वो तो मैं भेजूंगा इसे ना सर. थोड़ा सर 1 आवर भी चलेगा सर, मतलब हाँ मैं भेज दूंगा. मेरे को पता है ना आप लोगों का कल ही क्लास है, तो आई विल सेंड इट अ लिटिल अर्लियर टुडे. ओके सर. ठीक है. एंड देन देयर इज दिस question which is asking you in terms of how your page booklet का completion has been. ठीक है, it is asking you to honestly mark आपने कौन से सेक्शंस है जो अटेम्प्ट करे हैं, कंप्लीटली कर लिए हैं कि पार्शियली कर लिए हैं, आप इसमें हाईलाइट करके रखो. सर वो समझा. Then the next question is that after you have like done these questions from the booklet, have you shortlisted some good questions? Like आपको जिनमें डाउट आए वो डाउट आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं कि नहीं करे हैं, या कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे मैंने बोला कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बाद में रिवीजन के लिए रखना, राइट? ऐसे एक चैप्टर में एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस आपके शॉर्टलिस्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, अराउंड 50 to 70 क्वेश्चंस should then become a good source of revision for you in future when you are going to give a test of that chapter. Okay, so that is also a habit which you need to develop while you are attempting these questions from the booklet, right? And then based upon whatever you have filled up, a final summary question hai in terms of assessing what is your level with the chapter. Is it level 1, level 2 or level 3? Level 1 means that आपके पास proper notes ही नहीं है, like you did not attend classes properly, so you have like big gaps in terms of understanding of that chapter. Level 2 is something that you have attended the class regularly, you have made the notes, you have solved the booklet but still lack confidence, you are not much confident, which is actually in most of the cases there that thoda aur practice lagti hai. Level 3 is something where students along with the booklet would have solved DPPs, would have also solved some assignment questions that I have given them, would have solved some booklet also. तो उनका level थोड़ा बढ़ जाता है. They have become more mature in terms of the problem solving and they would need more challenging questions. So of course your aim should be to reach level 3 only, right? But if you are at level 2, then what is it that you need to do to attain level 3? That is something which you'll have to work out. ठीक है, is this clear with you? क्या था ये फॉर्म? Yes sir. Sir, in level 3 we have to solve JK, that
VK that सर वो completely नहीं दिख रहा है वो level 3 वो जब आप पढ़ोगे तब दिखेगा। अच्छा ओके। मतलब ये अभी क्योंकि मैं ही क्रिएट किया हूँ ना फॉर्म, तो मुझे वो पूरा नहीं दिख रहा है। आप जब एज ए यूजर लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, in level 3 we have to practice from other books also. Yes. It was written, sir. Yes. Sir, actually in that books in the PDF level 1, level 2, level 3 is there, sir. Which one we have to solve? Sorry? Sir, in that books mentioned, sir, level 1, level 2, level 3. अगर आप level 2 पर हो तो you don't need to solve book का easy questions, no? Like for example नरेंद्र अवस्थी if you are doing, तो अगर आप level 2 पर हो, आपने बुकलेट अच्छे से करी है, then you need not waste time on the easier sections in that book. You should go for the advanced level questions. उसमें आप फिर attempt करो, उसमें doubts आएंगे उनको discuss करो. Make sure that your level increases. That is what the practice is for. Okay, sir. ठीक है? सर हाँ, अब इसमें एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग दैट ये जो PYQ से वैलिडेट करना है वो पेज की बुकलेट से कर लें क्या? पेज की बुकलेट में PYQ सारे के सारे नहीं दिए हुए हैं. डोंट रिलाई ऑन दैट. यूज दैट जिप फाइल. वो जिप फाइल किसी ने शेयर किया क्या ग्रुप पे दोबारा? No, sir, you didn't share. सर विद जिप फाइल. अरे सर आपने नहीं डाला ग्रुप पे अब तक जिप फाइल? हाँ सर जिप फाइल नहीं आया। हाँ सर नहीं डाला फाइल शायद नहीं आया. देयर इज, मैं डाल देता हूँ. गिव मी 1 minute. Jmain PYQ सर I put it. डाल दिया तुमने? नहीं. This is not the Jmain PYQ. These are those questions which are there for level 1 students. जो बच्चे level 1 पर हैं उन लोगों के लिए जिप फाइल था. तो 2 डाला है मैंने, एक Jmain PYQs up till 2020 पे और दूसरा वो जिप अच्छा दूसरा भी डाल दिया. हाँ ठीक है तुमने. सही है. ठीक है सर वो PDF जो जिप आया वो क्या चीज का है सर? वो जो PDF आया है that is something for those students who are at level 1. मतलब उनका like या तो चैप्टर मिस हो गया या बीच में because of some reason they were not able to attend lectures or something, some problem they encountered, तो उसकी वजह से अगर वो पीछे रह गए, उनको बुकलेट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो उनको फिर ये प्रॉब्लम्स जो मैंने भेजी हैं जिप फाइल वाली वो करनी चाहिए. Those are like एकदम बच्चों लेवल क्वेश्चंस, लेवल 1 लेवल 2 एकदम इजी, मेंस लेवल से भी इजी क्वेश्चन. तो उनको फिर वो क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. Booklet and homework questions are not enough to become level 3. The homework is just booklet के questions aren't going to be enough to become level 3. हाँ, अगर आप ये कर लेते हो कि आप बुकलेट पूरी कर लेते हो और फिर बुकलेट के क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट कर लेते हो और वो शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस लाइक आर समथिंग व्हिच यू हैव मेड प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ, एंड देन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि राजा मैं बुकलेट में से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछूं इस चैप्टर का, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एंड इफ योर क्वेश्चन इज और आंसर इज लाइक कि सर हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, देन यू आर एट लेवल 3. So if you are at that level, then you need not refer to another book, because then आपने बुकलेट बहुत अच्छे से लगा लिया. Sir, हाँ sir, if we didn't solve एक करके. Sir, if we didn't solve FB, yes, but rest of the exercise are solved, then we are in level 2 or level 3, sir. You have to judge it yourself based upon how your confidence in the chapter is. There is no quantitative scoring mechanism that I have done over here कि यहाँ पर इतना करा तो इसका scoring कर लिया. ठीक है, this is something which you will have to judge for yourself at what level you are right now, and this is a form that is updatable. ऐसा नहीं है कि आप इसको update नहीं कर सकते. I have kept the option, I think if I remember settings में हाँ edit after submit click किया हुआ है मैंने, तो आप बाद में edit भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आज लिख दिया तो फ्रोजन है. आज से 1 महीने बाद यू फेल्ट कि हाँ चलो ठीक है मोल कंसेप्ट में अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन अपडेट दिस फॉर्म. बट दिस इज समथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट टू कीप अ लॉग इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर डूइंग. ठीक है, अगर ये बाकी फिजिक्स मैथ्स में नहीं हो रहा है तो खुद बना के अपना एक फॉर्म तैयार करके रख लो.
make sure that you are updated in terms of your chapter level preparation. Is this clear? Yes, sir. It is for all chapters, sir. Like there are 44 PDFs in this. So means we have to do all, or like which we have done, like mole concept we have done, atomic structure. मतलब कहाँ से इतना टैलेंट लेके आते हो? मतलब जो चैप्टर करा है उसी का करोगे ना, जो चैप्टर पढ़ा नहीं तुम उसका कर लोगे क्या? No sir. तो फिर No sir, I was confused. That's why I saw so many PDFs. ठीक है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी ऐसा है क्या गूगल फॉर्म? गार्गी उस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ. Don't worry about that a lot. It's a question which I agree. That is a question that bothers a lot of toppers. ठीक है, मतलब ये जो तुमने पूछा है, this is something which I have seen a lot of students struggling with this and trying to come up with some rational argument. आपको नहीं मिलेगा. Just remember it and आगे बढ़ते जाओ. ठीक है? हाँ. Any other thing? सर ऐसा कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी है क्या ये गूगल फॉर्म? हाँ, पहले आप लोग ये भर लो, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है, चलो. ऑल राइट, आई थिंक थैंक यू सर. बाय सर. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सर. बाय सर.